أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. تو اب تک جو باتیں آ چکی ہیں طلاق رجعی اور طلاق بائن اور خلا کے سلسلے میں باتیں آ چکی ہیں. طلاق رجعی میں بغیر نکاح کے شوہر اپنی بیوی کو پھر دوبارہ نکاح میں لے سکتا ہے، نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. عدت کے اندر پوری ہونے سے پہلے عورت کو اپنے پاس جملے سے ہی میں نے تجھ کو پھر سے نکاح میں لیتا ہوں کہہ دیا گا تو پھر وہ بیوی بن جائے گی. لیکن جب عدت پوری ہو گئی، جیسے ہی عدت پوری ہو جائے گی وہ طلاق بائنہ بن جائے گی. تو اب اگر شوہر اپنی بیوی کو پھر سے نکاح میں لینا چاہتا ہے تو پھر دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا، مہر بھی طے کرنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. خلا بھی ایسا ہی ہے. آخری آیت میں یہی بات بتائی گئی، فلا جناح علیہما، شوہر اور عورت بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں مال کے بدلے میں. عورت کچھ عوض دے کر چھٹکارا لے رہی، یہ ایک اختیار اللہ نے عورت کو بھی دیا ہے کہ جب اگر وہ چاہتی ہے کہ میں بھی شوہر سے دور ہو جاؤں تو پھر عورت کو بھی اللہ نے ایک حق دیا ہے. لیکن وہ ڈائریکٹ اپنے حق کو استعمال نہیں کر سکتی، قاضی کے ذریعے سے اپنے حق کو استعمال کر سکتی ہے. اسی کو خلا کہتے ہیں. ایسی صورت میں عورت کچھ مال دینا پڑے گا، اپنے مہر کو پورا دے گی یا پھر مہر کا کچھ حصہ دے گی، وہ اس کے اختیار میں رہے گا. جیسا ہوگا ویسا کر سکتے ہیں. جیسے کہ باغ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی عورت نے باغ پورا کا پورا واپس دے دیے تھے. تو اللہ نے یہاں ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس سے حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی کہ نکاح کر لینے کے بعد نکاح کو توڑا جا رہا ہے شوہر کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، لاکھوں کا مطالبہ کرنے کے لیے، ہزاروں کا مطالبہ کرنے کے لیے، جگہ کا مطالبہ کرنے کے لیے ظلم ہے. تو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی باؤنڈریاں ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو. اب جو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ ایسا خلا کا ہو، طلاق کا ہو جائے گا، اب ڈیمانڈ رکھا جاتا ہے، اتنے لاکھ دو، اتنے یہ کرو. تو یہ شریعت میں اس سے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے، اس ضرورت کو ضرورت کے حد تک رکھنا چاہیے. اب دیکھیے جیسے کہ کل بھی حیات الصحابہ کی تعلیم میں میں یہی بات بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک آئی تھی جو کہ قرآن کے سلسلے میں ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی قرآن کی بات چھڑ گئی تھی. تو قرآن فہمی کا جو شوق ہے وہ ہر ایک کے اندر آنا ضروری ہے. قرآن خوانی کا شوق تو سب کے اندر ہے. قرآن ختم کرنا، گھر اوپننگ ہے، دکان کی اوپننگ ہے، کوئی انتقال کر گئے برکتن پڑھے، یہ تو شوق ہے ہر ایک. پڑھنے نہیں آیا تو بھی پڑھنے آنے والوں کو بلا کر پڑھواتے ہیں. لیکن قرآن فہمی، آج گھر کی اوپننگ ہے، یہاں پر کوئی ایک آیت پڑھ کر اس کا درس کر دیجئے، اس کی تفسیر کیجئے. آج تک کوئی مثال سنے ہیں؟ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں گھر کی اوپننگ کے لیے، دکان کی اوپننگ کے لیے، یہاں پر کوئی ایک ایسی صورت کو پڑھ کر ان کو سمجھا دیجئے، کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ قرآن فہمی کا شوق بالکل ختم ہو چکا ہے. تو گزشتہ بار جو سوال کیے ہیں واقعی بہترین سوال تھا، وہ وقت نہیں تھا، میں بتا نہیں سکا. نکاح کی زندگی میں، نکاح کی میرج لائف میں، اب جو نکاح جو ہوتا ہے وہ لائف ٹائم نہیں، آفٹر لائف، ہیئر آفٹر، موت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی نکاح ہوتا ہے. اسی لیے شریعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو انلیمیٹڈ، اب ہمارا جو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ لمیٹڈ ہے، 3 دن ہو، 40 دن ہو، 4 مہینے ہو، جانے کی ڈیٹ بھی فکس، آنے کی ڈیٹ بھی فکس. اور صحابہ کے کام کو اور اس کام کو کروڑ درجے میں اگر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس کا ایک حصے کو پہنچ سکتے کہ ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے.
तो उस जमाने में जब सहाबा अल्लाह के रास्ते में चले जाते थे, आए ना एक सहाबी का नाम भूल रहा हूं मैं, 27 साल के बाद आए, अब्दुर्रहमान उनके बेटे का नाम। तो बहरहाल वो 27 साल के बाद आए, तो लिहाजा उस जमाने में एक वक्त तक निकाह मुता जायज था। निकाह मुता किसको कहते हैं? एक लिमिटेड टाइम के लिए निकाह करना। अब चूंकि शोहर के मर्द के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिनसी ख्वाहिश रखा है, तो अब उसको वो जरूरत पूरी नहीं होगी तो गुनाहों की तरफ मुब्तला हो जाएगा। तो लिहाजा जिस जगह चले जाते थे वहां पर 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए निकाह कर लेते थे। जैसे ही वो 3 महीने पूरा हो जाता था वो निकाह से औरत निकल जाती थी, तो उसका भी मेहर होता था, वो भी बीवी की तरह रहती थी 3 महीने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? निकाह मुअक्कद भी बोलते हैं, निकाह मुता भी बोलते हैं। वो जायज था, लेकिन बाद में नबी के हयात में ही उसको हराम करार दे दिया गया। अब उसको जायज नहीं है, वो जायज नहीं है। और शिया जो अभी भी दुनिया में मौजूद है, इराक में, ईरान में, यही इन्हीं का गलबा है, वो आज भी इसको जायज समझते हैं। निकाह मुता उनके पास जायज है, वो आज भी निकाह मुता करते हैं एग्रीमेंट के साथ। 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, ये जायज नहीं है। तो हमारा अब शरीयत के अंदर निकाह को सिर्फ लाइफ टाइम नहीं, हियर आफ्टर, आखिरत के लिए भी, जन्नत के लिए भी, तो मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए भी ये मेरी बीवी है। वो अलग मसला है, जिसके 2 बीवियां हो या जिसका पहला शोहर इंतकाल कर गया हो, ये किसके साथ रहेगी, वो अलग मसला है, कभी इंशाअल्लाह तफसील के साथ बयान करूंगा। तो बहरहाल निकाह जो होता है वो मौत के बाद के आने वाली जिंदगी के लिए भी होता है। तो जब शोहर कोई चीज उसको हिबा कर रहा है, जब शोहर उसके नाम पर कोई फ्लैट लिख कर दे रहा है, या कोई सोना उसके हवाले कर रहा है, चांदी उसके हवाले कर रहा है, तो किस इरादे से कर रहा है? मेरा माल उसका माल, उसका माल मेरा माल, मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी। तो जब ये मतलब क्या है कि ये दोनों ऐसा मिल गए हैं, लिबास, ये जिस्म और लिबास इतने हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनके लिए लिबास हो और वो तुम्हारे लिए लिबास है। तुम दोनों की कुर्बत, तुम दोनों की नजदीकी इतने करीब है जैसे जिस्म से कपड़ा करीब रहता है। तो हमारा माल तेरा, तेरा माल मेरा। लेकिन जब इतना करीब के रिश्ते को तुम लोग तोड़ रहे हो, तो फिर अब उसको वापस लेने की इजाजत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अब जो दे रहे हैं, इतने करीबी रिश्ता होने की वजह से, इतना मोहब्बत का रिश्ता होने की वजह से, लाइफ पार्टनर होने की वजह से, रफीक हयात होने की वजह से, शरीक हयात होने की वजह से अब दे दिए। तो अब उसके बाद खराबी होगी, मालिक बना दिए, हम जिंदगी में मालिक बना दिए। तो जब तलाक हो जाएगी, खुला हो जाएगा, बीवी अपने घर से जितना माल लाई होगी वो भी लेगी, और शोहर अपनी जिंदगी में जिसका उसको मालिक बनाया होगा वो भी वो लेकर जाएगी। हाँ, खुला होगा तो तुम सिर्फ मेहर का मुतालबा कर सकते हो। खुला बोल, मैं चाहता हूं, शोहर चाहता है कि अपनी बीवी को अपने पास रखे, वो नहीं रहना चाहती, तो उसके पास से मेहर ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेने की गुंजाइश नहीं है। तो एक फतवा की किताबों में मसला लिखा हुआ है, मियां बीवी का निकाह हो गया, बाकायदा ये फतवा लिखा हुआ है। कैसा निकाह हुआ? 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा, जॉब करने वाला आदमी, जहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया, निकाह कर लेके चले गए। जाने के बाद, निकाह के बाद दोनों में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई। शोहर एडजस्ट कर लेके जिंदगी गुजार रहा है और बात में झगड़ा कर रही है। तो निकाह के शुरू में ही, पहली रात में, जिनके पास थोड़ा बहुत निकाह से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं उलमा के जरिए से, किताबों के जरिए से, उनको मालूम है कि पहली रात में क्या करना है। एक बात याद रखिए, जो लोग बैचलर्स है उनको बता रहा हूं, या फिर जो दूसरा निकाह करना चाहते हैं उनके लिए भी समझिए। तो क्या है, पहली जो रात होती है या शुरू के जो 3 महीने होते हैं, आप जिस तरीके से हैंडल करेंगे ये आपकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। आप अपनी बीवी के साथ पहली रात हमारी अग्रीमेंट की रात होनी चाहिए कि हम जिंदगी कैसे गुजारे, मेरा और तुम्हारा मामला कैसा हो, अल्लाह के अहकामात में कैसा हो, माँ बाप के सिलसिले में कैसा हो, ये तमाम चीजों के एग्रीमेंट का दिन रात है। और इसमें ये जब चीजें सही तरीके से अदा हो जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन उस दिन रात में करने के काम ना करे और ना करने के काम कर देंगे तो जिंदगियां बिगड़ जाती है। 3-4 महीने तक औरत को बाकायदा अपने घर के अहवाल के मुआफिक उसको चलाना सिखाना है।
देखो अब्बा का मिजाज ऐसा है, अम्मी का मिजाज ऐसा है, बहन का मिजाज ऐसा है, तुमको ऐसा रहना है। और जब ऐसा होगा तो मैं, हो सकता है माँ के सामने मैं तुमको डांटूं, हो सकता है कि माँ के सामने मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं, लेकिन वो वक्ती गुस्सा रहेगा। मैं तुम्हारे पास आकर फिर रूम में तुम्हारे पास मैं मसले को हल कर लूंगा। ये जब बातें तय हो जाएंगी, क्या झगड़ा होगा, लड़ाई होगी? तो नहीं होगा। ये नहीं होती चीजें, ये शुरू के 3-4 महीने में नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये चीजें टूट जाती है, ये चीजें खत्म हो जाती है। तो लिहाजा अब ये औरत ये ना इत्तेफाकी हो गई, बात बात पर झगड़ा करने लगी और बाकायदा ये बोल रही हैं तो मुझे तलाक दे दो। शोहर तलाक तक गया ही नहीं, खुद औरत पूछ रही है तो मुझे तलाक दे दो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 मरतबा भी ऐसे ही किया। और ये शोहर जो है शुरू के महीने में बहुत सारे उसको गिफ्ट दे दिया था। गिफ्ट का मतलब सोना लाया, गिफ्ट के तौर पर नहीं लाया, लाकर दे दिया उसके इस्तेमाल करने के लिए। अब जब तलाक हो गई तो अपने घर से तो कुछ नहीं लाई थी, अपना मेहर भी साथ में लेकर गई और शोहर ने जो सोना वगैरह दिया था वो भी साथ में लेकर चले गई। अब जब ये मसला दारुल इफ्ता को आया तो उसमें जवाबन ये लिखा गया कि अगर आपने उसको, अच्छा शोहर ने सवाल में ये भी लिखा, मैं उसको सोना दिया था लेकिन मैंने उसको मालिक नहीं बनाया था और उस माल का ज़कात भी मैं ही दे रहा था, उस माल की ज़कात मैं ही दे रहा था, तो अब फिर क्या ये माल मेरा है या फिर वो मेरी बीवी का है? तो जवाबन लिखा गया, अगर वाकई आपने उसको मालिक नहीं बनाया था या आप ही उसकी ज़कात अदा कर रहे थे तो वो माल आपका ही है, औरत को साथ में ले जाने का हक नहीं रहेगा। तो ये मसाइल है। अगर हमने दिलो जान से दे दिया, अब तलाक हो गई, जिसका निकाह से कोई ताल्लुक नहीं, हमने ऐसे ही उसके नाम पर कर दिया था, उसको दे दिया था, तो अब उसका हो जाएगा, वो लेकर चले जाएगी। हाँ, अगर मालिक नहीं बनाए, आरियतन इस्तेमाल के लिए दिए थे तो फिर उस पर शोहर का हक हो, वापस ले सकता है। गुज़िश्ता हफ्ता में आप लोगों के पास तमाम चीजों की इद्दत बताया। हैज ना आने वालों की इद्दत कितनी है, हैज आने वालों की इद्दत कितनी है, अगर शोहर इंतकाल कर गया तो इद्दत कितनी है। एक इद्दत बताना भूल गया था, वो है हामिला औरत की। हामिला थी औरत, प्रेग्नेंट थी, शोहर तलाक दे दिया या शोहर इंतकाल कर गया, दोनों सूरतों में इंतकाल कर जाए, तलाक हो जाए, खुला हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो औरत हामिला होगी उसकी इद्दत जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर शोहर का इंतकाल हो गया, कल ही उसका बच्चा पैदा हो गया, तो अब वो दूसरा निकाह कर सकती है। इद्दत 4 महीने 10 दिन या 3 है, ये सब जरूरत नहीं है उसके लिए। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। ये एक मेरे से छूट गई थी, वो मैं अब बता दिया हूं। इसके बाद देखिए, यहां पर एक बात समझने की है, जैसे मैं आप लोगों को निकाह मुता के सिलसिले में बता दिया, निकाह भी एक मकसद के लिए है, तलाक भी एक मकसद के लिए है। निकाह किस लिए है कि निकाह का एक मकसद यह है कि लड़की के भी और लड़के के भी दोनों के जज्बात कंट्रोल में रह सके। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक पोस्ट चल रहा है सोशल मीडिया में, जब लड़की या लड़का जवान हो जाए तो फिक्री तौर पर नेचुरली उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक वक्त है तो उनका ठिकाना लगा देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, और बेजा निकाह में ताखिर करना उन पर जुल्म है। जब वो लोग बुरा रास्ता इख्तियार करेंगे तो जितना गुनाह उन बच्चों को होगा उतना ही गुनाह माँ बाप को भी होगा, क्योंकि इन्होंने उनके निकाह में बेजा ताखिर किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गुनाहों का इर्तिकाब किया है। तो ये एक फित्री चीज है, जब लड़का हो लड़की हो, जब उनके अंदर चीजें पैदा हो जाती हैं तो उनका इंतजाम करना हर एक के लिए जरूरी है। तो ये एक मकसद के लिए होता है। तलाक भी एक मकसद के लिए रखा गया, जब उसको बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका बुरा इस्तेमाल बिल्कुल वो शरीयत के खिलाफ आएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जो 3 तलाक कोई आदमी दे देता है एक साथ, या बीवी को पूरे तौर पर दे देता है, अभी आगे बात आएगी, वो गुनहगार होगा। बहरहाल, तो आजकल जो निकाह टूटने के जो वजूहात है, उन वजूहात में से कुछ बातें पिछले जमाने में बहुत सारे पुराने लोग, उम्र दराज लोग भी बैठे हैं, पिछले जमाने में आप लोग देखे होंगे, जैसे ही लड़की जवान होने के करीब आती थी, बार बार उसको इज़्दिवाजी जिंदगी, शादी के बाद की जिंदगी का एहसास दिलाया जाता था। 12 साल से ही
क्या तू भी जर्रा गलत काम कर दिए तो गए सो घर में क्या जीना कर को खाती की। आज बोलते ये जुमला, कोई माँ बाप के जुमले से जुमला ही नहीं निकलता। पहले बोलते थे बाकायदा, गए सो घर में क्या जीना कर को खाती की तू, घर गए सो घर में क्या हमारी इज्जत बचाती की तू। तो एहसास दिलाते थे, चाय बनाने नहीं आता, चावल चुनने नहीं आता, बाकायदा उसको काम देते थे। तो औरत के जहन में बैठ जाती थी कि मुझे वहां जाकर अपने माँ बाप की इज्जत भी बचाना है और उस गए हुए घर को भी आबाद करना है। जब इस इरादे से जाती थी तो वो घर बाकायदा आबाद भी होता था और इनके घर की इज्जत भी बचती थी। अब ये तमाम चीजें खत्म हो गई। और क्या करते थे मालूम, रागी का आटा आता ना, रागी के आटे में चावल के दाने देकर बच्ची को सूप में डालकर दे देते थे चुनने के लिए। बड़े लोग ऐसा किए हैं, बाकायदा किताबों में लिखा है। अरे ये क्या जरूरत, रागी के आटा लिए, जारी का आटा लिए, उसमें क्या डाल दिए, चावल डाल दिए और डालकर बोले चुनो इसे। क्यों, सबर आना, घर को जाने के बाद चावल चुनना बोले तो भी चुनने का सबर आना। पहले बाकायदा चावल चुनने के लिए आज वो काम ही नहीं है, तो ये सबर दिलाया जाता था उसको। और ये बात बताई जाती थी, बेटी जब तुम निकाह कर लेके घर को जाओगी, शोहर की बात को तुम फैसल समझो, अपनी बात को मनाने के पीछे ना पड़ो। पिछले जमाने में हम लोगों ने देखा है, बाकायदा बड़े लोगों को देखा है, शोहर बोलते ही औरतें खामोश, भाई हमारे बड़े क्या बोले वो, हमारे यजमान क्या बोले वो। आज ऐसा नहीं है, घर वालों को पूछ को बोलते, क्या बोलते हैं, घर वालों को पूछ को। मशवरा करना है तो अलग बात है, लेकिन हर बात को घर वालों को पूछ कर बोलना ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये चीजें पहले बाकायदा सिखाई जाती थी। और इसी तरीके से आज मामला कितना उल्टा हो गया है बोले तो, बच्ची को देखने के लिए आए हैं और उस वक्त माँ बाप शान से बोलते हैं हमारी बच्ची को चाय भी बनाने नहीं आता। क्या बोलते हैं, चाय, इसे शान समझ रहे हैं। और लड़की भी मुझे चाय बनाने नहीं आता तो वो भी अपने आप को एक आला मेयार की लड़की समझ रही है कि मुझे खाना पकाने नहीं आता। अब हुआ मामला क्या होता, निकाह के बाद पकाना जरूरी है, निकाह के बाद चाय बनाना जरूरी है, निकाह के बाद घर का कामकाज करना जरूरी है। तो अब लड़की क्या करती, किताबें देखकर, यूट्यूब देखकर, मेहनत लगाकर, जोर लगाकर एक मर्तबा खाना पकाती, बिरयानी की क्या की पका देती। अभी आशुरा गया, आशुरे के दिन नए निकाह वाले जिनका निकाह बकरीद के बाद हुआ या बकरीद से पहले हुआ, आशुर में पकाए होंगे। पकाना नहीं आता, सीखे नहीं, माँ नहीं सिखाई, पूरी जिंदगी ऐसे वैसे कामों में गुजर गई। मेहनत कर 3-4-2 घंटे में होने वाला काम 4-5 घंटे लगाकर पकाई, खाना बिगड़ गया। अब ससुराल वाले चुप रहेंगे, अच्छा बने तो तारीफ करना मुश्किल है, अब बुरा बने तो तारीफ करेंगे, है कि नहीं भाई। ससुराल का हाल कैसा रहता बोलो, अच्छा बने तो तारीफ करना मुश्किल है, तो जब बुरा बने तो तारीफ करेंगे कि मिला रे मौका बोल को है सोने से पूरा बोल देते। तो अब औरत बदजन हो जाती, लड़की बदजन हो जाती, इसका दिल टूट जाता है। वो इतना मेहनत कर को पकाने के बाद भी, अब वो दीनदार है, दिल जीतने वाले हैं, नमक के बजाय शक्कर डाल दिए, शक्कर के बजाय नमक डाल दिया तो तारीफ कर वो खा लेते, अरे लड़की का दिल नहीं तोड़ना बोल के। लेकिन ऐसा घर कहां मिलेगा, अच्छे अच्छे दीनदार घरानों में बहू को मौका मिल गया तो बस उस पर टूट पड़ते हैं। तो अब वो औरत टूट जाती है, पूरे तौर पर टूट जाती है, इस दिमागी जिंदगी से बदजन हो जाती है। तो ये चीजें इस दिमागी जिंदगी से पहले सीखना बहुत जरूरी है। यानी मैं आप लोगों को तलाक जो जरूरत की चीज थी वो किन वजूहात से आज हो रही है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये छोटे मोटे वजूहात जो बिल्कुल तलाक के वजूहात नहीं है, इन वजूहात से सास बराबर नहीं है, ससुरे बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं, ये चीजें इस वजह से तलाक के वाकयात पेश आते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, इसलिए बयान किया जा रहा है। और इसी तरीके से अब जो दुनिया में जो रिश्ते हैं, मियां बीवी के जो रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते कैसे हैं, दोनों के सबर से चल रहे हैं। मियां बीवी के कुछ रिश्ते कैसे चल रहे हैं, दोनों में सेट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी शौहर भी सबर कर रहा, बीवी भी सबर कर रही, तो इनकी जिंदगी मौत तक चलेगी। बाज रिश्ते कैसे हैं, शौहर ज्यादातर आज के जमाने में, न्यू जनरेशन में, औरतों से ज्यादा मर्द सब्र कर कर अपने रिश्तों को बचा रहे हैं। औरतें तैयार है जाने के लिए, औरतें तैयार है टूटने के लिए, लेकिन मर्द 70%, मैं मेरे अंदाजे से बोल रहा हूं समझाने, क्योंकि 50 से कुछ ज्यादा बताने के लिए, वरना तो कोई सर्वे नहीं किए हैं। तो ज्यादातर मर्द हजरात अपने रिश्तों को बचाना चाह रहे हैं, खानदान की इज्जत है, वरना हमारे अम्मी अब्बा का नाम बदनाम हो जाए, इस डर से
उस औरत को संभाल कर रखें। अभी 30% औरतें संभाली हुई हैं कि भाई मैं जाऊंगी तो अम्मी अब्बा को परेशानी होगी, भाई को परेशानी होगी, चलो इन्हें जालिम तो रहने दे, कैसा तो रहने दे, इसके साथ रहकर ऐसा ही जिंदगी बसर कर लेंगे। ये तीनों चीजें जहां नहीं पाई जाएगी वहां पर ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट कौन सी शक्ल में आएगा? तलाक की शक्ल में, खुला की शक्ल में। जब ये चीजें, ये लास्ट पॉइंट में अल्लाह ने खुला को, तलाक को रखा है कि अब इस्तेमाल करो तलाक खुला को। अब यहां अगर तलाक नहीं लेंगे, यहां अगर खुला नहीं देंगे, तो इसके बाद अल्लाह आगे फरमाते हैं, मैं अभी आप लोगों को बैकग्राउंड समझाता जा रहा हूं, उसके बाद आयत को फिट करके बताऊंगा। ये जब चीजें आएंगी, लास्ट पॉइंट है खुला का और तलाक का, जब ये जरूरत पड़ गई, अब जरूरत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हद से आगे बढ़ेंगे, नुकसान दोनों का होगा। ये कत्ल के वाकयात, ये खुदकशी के वाकयात, ये सुसाइड करने के वाकयात, ये किस लिए पेश आते हैं? अब यहां इन दोनों को मिलाकर रखना मुज़िर है, इन दोनों को मिलाकर रखना मुश्किल है, इन दोनों को मिलाकर रखने से नुकसान ज्यादा है, फिर भी मिलाकर रखना चाह रहे हैं तो किसी ना किसी का नुकसान जरूर होगा या सबका नुकसान होगा। तो ये जरूरत है, इस जरूरत को जरूरत की हद तक इस्तेमाल करना जरूरी है। अच्छा, अब तक जो बातें आई है, एक तलाक, दो तलाक और खुला, ये तीन चीजें आई ना। एक तलाक दे दिए तो शोहर फिर अपनी बीवी को फौरन ला सकता है, दो तलाक दे दिया दोबारा निकाह पढ़ा के ला सकता। अब यहां पर आखिरी दर्जा तीन तलाक का जिक्र आ रहा है। आयत नंबर 237, 30/7, आयत नंबर 30/7 में ये है लास्ट स्टेज, तलाक का लास्ट स्टेज। कोई भी मर्द अपनी औरत को तीन तलाक दे देगा तो वो परमानेंटली अपने निकाह से निकल जाएगी, अब वो उसकी बीवी नहीं कहलाएगी। ना रजात कर सकता है, ना निकाह जदीद से अपनी बीवी को फिर बीवी बना सकता है, बिल्कुल नहीं, वो पूरे तौर पर अब दूसरे की होगी, वो हमारे पास नहीं आ सकती। अच्छा, ऐसा क्यों किया अल्लाह ताला? पिछले जमाने में क्या होता था, तीन नहीं, ऐसे कितने ही तलाकें दे देकर औरतों को तलाक देते थे, फिर निकाह में ले लेते थे। जैसे ही इद्दत खत्म होने आती थी, फौरी तौर पर एक तलाक दिए, फिर इद्दत पूरी होने से पहले फिर निकाह में ले लिए, फिर तलाक दिए, फिर ले लिया, ऐसे अनलिमिटेड करते थे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला इस तीन तलाक को लिमिट कर कर औरतों को अपने पास बचाकर रखने के लिए, अपने औरतों को पूरे तौर पर बाहर ना निकालने के लिए लिमिट कर दिया। अब जो औरतों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो वाकई औरतों की इज्जत रखते हैं, उनके लिए अब औरत की इज्जत है, इसमें हकीकत में देखा जाए तो औरत की हिफाजत का जरिया है। एक शोहर अपनी औरत को हिफाजत से रखने के लिए गन खरीदा, अब वो उस मिसाल को सामने लेकर आइए, तलवार को लिया, गन को लिया, किसने लिया है? कोई भी चोर आकर मेरी बीवी पर हमला करेगा तो मैं उस गन से क्या करूंगा? बोलो भाई, उसे हमला करूंगा। तलवार रखा हूं, कोई मेरी बीवी पर हमला करेगा तो मैं उसे हमला करूंगा, इस इरादे से गन को खरीद कर रखा। अल्लाह ने औरतों को छोड़े बगैर रखने के लिए, ताकि तीन तलाक दे देंगे तो मेरी बीवी मेरे निकाह से निकल जाएगी, इस डर से, इस खौफ से रखने के लिए अल्लाह ने तीन तलाक को रखा। जैसे एक मर्द अपनी हिफाजत, अपनी बीवी की हिफाजत के लिए गन खरीदता है, तलवार खरीदता है, अब बेवकूफ अपनी ही बीवी पर गन चला दिया तो क्या हो जाएगी? अपनी ही बीवी पर तलवार चला दिया तो चले जाएगी। तो ऐसे ही तीन तलाक देने के लिए नहीं रखा गया, तीन तलाक से बचने के लिए तीन तलाक रखे गए हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तीन तलाक से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस बात को अच्छे तरीके से समझिए। जो अल्लाह ने तीन तलाक को रखा है, जैसे जहर है, जहर को लाए हैं चूहों को मारने के लिए, जहर को लाए हैं जंगली जानवरों को मारने के लिए, वो अपनी बीवी के खाने में मिलाकर रख दिया है बेवकूफ, तो बीवी मरेगी नहीं मरेगी? मर जाएगी, खुद खाएगा तो मर जाएगा। तो ये तलाक अपनी बीवियों को बचा कर रखने के लिए, ये तलाक अपनी बीवियों को अब पूरे तौर पर निकाह से ना निकालने के लिए, एक तलाक दो। और तलाक देने का तरीका साहिब हिदाया बेहतरीन अंदाज में लिखे हैं। तलाक के तीन किस्में हैं। कितने हैं? तीन किस्में। एक है हसन, दूसरा है अहसन, तीसरा है बिदअत। हसन क्या है? अहसन क्या है? देखो, औरत को जब मर्द को जरूरत पड़ गई, निकाह मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है मालूम? पाकी के अय्याम में औरत नापाक है इस वक्त में तलाक नहीं देना।
اس لیے کہ ناپاکی میں شوہر اپنی بیوی سے خواہش پوری نہیں کر سکتا، اس وقت میں دوری رہتی دونوں میں، تو جان دے چھوڑ، نہیں تو نہیں، طلاق دے ڈالتا۔ لیکن پاک ہے عورت، اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، ایسے پاکی کے ایام میں طلاق دینا اور پھر ناپاک ہونے تک ٹھہرنا، پھر اس کے بعد پھر پاک ہونا، پھر دوسرا مہینہ آنا، پھر دوسری طلاق دینا، یہ ہو گئی دو طلاق۔ پھر پاک ہونا، پھر ناپاک ہونا، اس کے بعد پھر پاک ہونا، اس کے بعد تیسری طلاق دینا، یہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد دو، دو کے بعد تین، اس طریقے سے 3 طلاقیں دے سکتا ہے۔ اس میں بھی عورت اپنے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن یہ دینے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی 3 طلاق دینا چاہتا ہے تو پاکی کے ایام میں الگ الگ دینا۔ اگر ایک طلاق دے دیا پاکی کے ایام میں، پھر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بلا لے کر آ گیا تو وہ اپنے نکاح میں آ جائے گی۔ 3 ہو گئے تو نکل جائے گی۔ یہ ہے طلاق احسن۔ طلاق حسن کیا ہے؟ ایک طلاق دے دیے، عدت ختم ہونے تک چھوڑ دینا۔ جیسے عدت ختم ہو جائے گی نکاح سے نکل جائے گی، اب طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اب پھر اگر لینا چاہتا ہے تو بعد میں نکاح پڑھا کر دوبارہ لے سکتا ہے۔ طلاق بدعت کیا ہے؟ ایک ساتھ یا 3 مرتبہ طلاق 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 بول دیا تو 3 طلاق، یا ایک ہی مرتبہ تجھ کو 3 طلاق دیتا ہوں کہہ دیا تو طلاق پڑ۔ یہ ہے طلاق بدعت۔ صاحب ہدایہ نے لکھا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا، جب آدمی ایسا کام کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا، سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ ارے جو گن اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے لے آیا تھا اسی پر چلا دیا، جو زہر چوہوں کے لیے لایا تھا اسی کو کھلا دیا، تو اب کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، متقی ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا سلاسن، 3 چیزیں ایسے ہیں جدہن جد وحزلہن جد، جن کا مذاق بھی سچ ہے، سچ بھی سچ ہے۔ وہ آگے بات آئے گی تفصیل کے ساتھ، اس وقت بتاؤں گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا کوئی بیوقوف دے دیا 3 طلاق، تو کیا کرنا؟ 3 طلاق، یہی تو ابھی سمجھ میں آئے نا، 3 طلاق دینے کے لیے رکھا گیا ہے، نہیں دینے کے لیے رکھا گیا ہے؟ ارے بولو بھائی، نہیں دینے کے لیے لمٹ۔ ارے بھائی الرٹ، یہ 50,000 واٹس کا ہے، ٹرین کے پاس وہ دیکھ رہیں گے لکھا رہتا ہے الرٹ ڈینجر۔ ارے وہ ڈینجر لکھے ہیں نکو آن دے بول کو، کوئی بیوقوف ہے نکو بولے تو جائیں گے، گیا تو جان چلے جاتی نہیں جاتی۔ اس لیے الانسان حریص فی ما منع، عربی کا لفظ ہے، انسان ان چیزوں کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ ایک کنواں ہے، اب ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا، کوئی کنواں ہے، اندر جھانکنا منع ہے بول کے کہاں تو بھی لکھو ہے بولے تو انہوں جھانک کو دیکھتے ہیں، وہاں کیا بھی بورڈ نہیں ہے تو چپکے چلے جاتے ہیں، لیکن بورڈ لکھا ہے یہاں جھانکنا منع ہے، کون تو دیکھ رہے گا، دیکھتے پہلے کون بھی دیکھ رہے چلو جھانک کو دیکھیں گے۔ تو ایسا طلاق سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن کر کو دیکھیں گے، وہ کو بھی دیکھتے بعض لوگ، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، تو یہ بہت غلط ہے۔ تو طلاق سے روکنے کے لیے رکھا، اس میں عورت کی عزت ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے عورتوں کو ہمیشہ کے لیے رکھو اپنے پاس، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو یہ کے ذریعے سے دے دو۔ یہ دینے کا فائدہ کیا ہے بولو؟ تم پھر اپنی بیوی کو نکاح میں لا سکتے ہو، دو دے کر بھی تم اپنی بیوی کو پھر اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، لیکن 3 دے دو گے پھر وہ تمہارے نکاح میں آنے کے لیے دوسرا طریقہ ہے جو بے شرمی کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صاحب فرمایا، یہاں پر وہی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دے گا تو وہ عورت پورے طور پر نکاح سے نکل جائے گی، پھر وہ دوسرے سے نکاح کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا، اور وہ جیسے یہ خود بخود طلاق ہوئی نا، ایسے ہی ان کے درمیان بھی خود بخود طلاق ہونا، شرط کے ساتھ نہیں۔ عبداللہ فاطمہ کا نکاح ہوا، دونوں ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، جیسے ہمیشہ کے لیے نکاح ہوتا، نکاح چل رہا تھا، زندگی چل رہی تھی، دونوں میں نا اتفاقی ہو گئی، فاطمہ کو طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا۔ اب یہ خود بخود ہوا یا چاہ کر کرے ہیں؟ خود بخود ہوا نا، پرماننٹ رہنا بول کے نکاح کر لیے، لیکن درمیان میں نا اتفاقی ہو گئی، تو یہ خود بخود ہوا، بول کر کرائے گا، خود بخود ہوا۔ اب عبداللہ کے نکاح سے فاطمہ نکل کر اب وہاں عبد الرحمن کے نکاح میں چلے گئے، اب انہوں بھی ایک میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں گے، وہاں پر بھی خود بخود طلاق ہو گئی، تو پھر وہ فاطمہ عبداللہ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے،
لیکن عبد الرحمان کو نکاح کرانے کے وقت میں بولتا ہے نکاح کر لے کو طلاق دے ڈالتا ہوں میں پھر نکاح کر لیتا ہوں، بولے تو یہ جائز نہیں ہے۔ آج اس مسئلے کو بھی لوگ بیان کر کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کہ یہ حلالہ، اس کو کیا بولتے ہیں شریعت میں حلالہ بولتے ہیں، حلالہ سینٹر اوپن کر لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے یا کراتا ہے، محل دوسرا نکاح کر رہے ہیں، عبد الرحمن محل ہے اور عبداللہ محلل لہو ہے، جس کے لیے نکاح جائز ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا التیس المستعار، پچھلے زمانے میں اور ابھی بھی بیل کو اور بکرے کو بکری کے پاس لے کر جاتے اور ان سے جفتی کراتے، بیل کو بھی لے جا کے جفتی کراتے تاکہ انہوں بھی حاملہ ہو کو بچے پیدا کریں گے، وہ باقاعدہ پیسے لیتے تھے۔ اسلام میں جائز نہیں پیسے لینا اس کے لیے، تو پہلے زمانے میں پیسے لے کر اب میرے پاس گئی ہے، تمہارے پاس بیل ہے، اب انہیں حاملہ ہونا تو کیا کرنا، اس کے پاس سے بیل لے کے آ کے جفتی کراتے، تو بکرا لے کے آ کے بکری کے پاس سے جفتی کراتے، تو کرانے کے بعد ان کو بچے پیدا ہوتے۔ تو ایسا نکاح حلالہ سینٹر اوپن کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بکرا بول رہے ہیں۔ کتنی بے عزتی ہے، کیا اس کی اجازت اسلام دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو جب وہ نکاح سے نکل گئی تو انہوں آٹومیٹک ساتھ میں رہنا، لیکن خود بخود ان کا نکاح ٹوٹ گیا تو اب یہ پہلے شوہر کو حلال ہوگی، ورنہ پرماننٹلی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ کیسا ہوا؟ یہ ایسا ہوا حضرت رفاعہ، ایک صحابی، کیا ہے نام؟ حضرت رفاعہ، نام ہی حدیث رفاعہ کے نام پر پڑا۔ رسیلہ، حدیث اسیلہ، اسیلہ کے معنی شہد، شہد کی حدیث۔ اس میں کیا ہوا، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا، ان کی بیوی کا ایک عورت سے نکاح ہوا۔ ایسے وہ ذرا سخت تھے، غصے والے تھے، کیا تو بھی غلطی ہوئے تو ڈانٹنے والے، مارنے والے تھے، تو نہیں رہے تم کو طلاق لے لیے۔ اس کے بعد دوسرے صحابی کے پاس نکاح کے لیے گئے، تو جب ان سے نکاح ہوا تو اب وہاں ازدواجی زندگی کے حقوق پورے نہیں ہو پا رہے تھے، ازدواجی زندگی کے حقوق پورے نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کون؟ حضرت رفاعہ کی بیوی۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے رفاعہ کی بیوی تھی، پھر اللہ کے نبی کے پاس آ کر پھر دوسرے صحابی سے نکاح ہو گیا۔ تو جب ان سے ایک دوسرے شخص سے نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا تو جو حقوق ملنا ہے بیوی کو نہیں مل رہے تھے۔ وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ حُدْبَةِ الصَّوْبِ، یہ جملہ میں آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جملہ ایسا جملہ ہے، حدیث میں یہ لفظ لکھا ہوا، اس لیے میں لکھ کر لے کر آیا۔ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ حُدْبَةِ الصَّوْبِ، اللہ کے نبی ان کے پاس گھاٹی بندھے ہوئے کپڑے کے مانند ہے۔ اب ایک کپڑا ہے، اس میں ہاتھ میں لیں گے تو کیسے گرے گا؟ نیچے گر جائے گا نا۔ تو مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی شرمگاہ میں طاقت نہیں ہے۔ یہ اشارہ آ کر اب ہم لوگ کیا یہ کیسا بات بول رہے نا شوہر کے بارے میں؟ ارے ایک بات سمجھیے، یہ عورت اپنے ازدواجی حقوق کو مانگ رہی ہے، غلط ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ عورت اپنے نبی کے پاس آ کر، نبی ایک حاکم ہوتے ہیں، ایک قاضی ہوتے ہیں، وہ فیصل ہوتے ہیں، تو ان کے پاس آ کر اپنے حق کو مانگ رہے ہیں۔ نکاح کا ایک حق ہے، بیوی کی ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت جب پوری نہیں ہو رہی تو مانگ سکتی ہے۔ یہ بے شرمی نہیں ہے۔ بے شرمی کیا ہے؟ آج کی نوجوان لڑکی ایک غیر محرم کے ساتھ جا کر لاڈج میں سو جانا، یہ بے شرمی ہے۔ اور باپ جب پوچھتا ہے کہ بیٹی تیرا نکاح کرانے کا ارادہ ہے تو بیٹی کہتی ہے ابو ضرورت نہیں ہے، میں میرا لڑکا چن لی ہوں، یہ بے شرمی ہے۔ یہاں تو اپنے رفیق حیات اور اپنے شریک حیات سے اپنا حق مانگ رہی ہے کہ میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کر سک رہا، اس لیے میں پھر دوبارہ حضرت رفاعہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم اس سے نکاح کرنا چاہتی ہو تو اتریدین ان ترجعی الی رفاعہ، تو تم کیا پھر رفاعہ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں، لا حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتکی، جب تک وہ تمہارا مزہ نہ چکے اور تم اس کا مزہ نہ چکے وہ تم کو حلال نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جب بندہ 3 طلاق دے دے گا تو یہ عورت پھر دوسرے نکاح میں جانا پڑے گا، پھر خود بخود ان کی طلاق ہونا، بول کر طلاق نہیں کرا سکتے، شرط کے ساتھ نکاح نہیں کرا سکتے، ورنہ
ये ऐसे ही है जैसे बकरे को बकरी के पास ले जाकर हामिला करते हैं, बैल को गाय के पास ले जाकर उसको हामिला करते हैं, इनकी मिसाल ऐसी हो गई। ये नाजायज है, ये हराम। अच्छा, ये बेशर्मी की बात नहीं, साहिब हिदायत बात लिखे हैं, वो बात भी मैं बताता हूं आप लोगों को। साहिब हिदायत बात लिखे, बाकिरा कहते हैं कुंवारी लड़की को, सईबा कहते हैं शादीशुदा औरत को। बाकिरा लड़की से जब निकाह की इजाजत लेना है, हर एक को इजाजत लेना, जब बच्ची बालिग हो गई तो इजाजत लेना चाहिए। तो बाकिरा से जब निकाह की इजाजत लेने गए, मामू जाए, चचा जाए, बाप जाए, भाभी जाए, कोई भी जाए, जब पूछने के लिए गए तुम्हारे अम्मी अब्बू फला से निकाह करा रहे हैं, तुम्हारा क्या इरादा है, तो अब लड़की के जिम्मे है कि वो मुस्कुराई या फिर रोने लगी, तो साहिब हिदायत ने लिखा है कि ये उसकी इजाजत है राजी की, मैं इस निकाह से क्या हूं, राजी हूं। क्या है, रोना या मुस्कुराना, हंसना नहीं, खिलखिलाकर मुस्कुराना, तबस्सुम बोलते हैं। लेकिन मुंह से बोलना जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए कि नौजवान लड़की का मुंह से माँ बाप का चुना हुआ निकाह भी मैं राजी हूं बोलना बेशर्मी की अलामत है। अब वो मुझे पसंद है, कर डालो, कितनी बेशर्म लड़की है ना, इन्हें मुंह खोल को बोलती है निकाह करो बोल को। ये मसला हिदायत में लिखा हुआ है। वही बाकिरा जिसका शोहर इंतकाल कर गया, तलाक हो गई, खुला हो गया, उससे निकाह की इजाजत ले रहे हैं, उन्हें रोए तो भी इजाजत नहीं, उन्हें हंसे तो भी इजाजत नहीं, उन्हें मुंह से बोलना जरूरी है। क्यों? उन्हें इससे पहले मैरिज लाइफ देख डाली है, इससे पहले शोहर की जिंदगी देख डाली है, अब उन्हें बोलने में बेशर्मी नहीं है, उसका बोलना जरूरी है। लेकिन आज तो ये सहाबिया औरत जो बोली है कि इनके पास मिसले कपड़े की तरह है, जैसे कपड़ा ऐसा हाथ में पकड़े तो नीचे गिर जाता है, तो इसके माने में उनकी शर्मगाह है, तो ये बेशर्मी नहीं है, वो अपना हुकूक मांग रहे हैं। तो ये आज की और उस वक्त तो सहाबिया जो है अपने हुकूक में बेशर्म नहीं थे, आज बेशर्मी के हद को लड़कियां पहुंच गई हैं। अच्छा, एक तो ये बात। अब ये तलाक को देखिए, तलाक को जरूरत के लिए रखे हैं ना, मैं तलाक जब से मैं क्या बोल रहा हूं, तलाक किस लिए रखे हैं, जरूरत की खातिर रखे हैं। एक हो, दो हो, तीन तो नहीं देना, एक दे दिए तो भी निकाह से निकाल सकते हैं, दो दिए तो भी निकाल सकते हैं, तीन, ये दो देने में फायदा क्या है, जिंदगी भर कभी भी तुम फिर उससे निकाह कर सकते हो। लेकिन तीन दे दिए तो मामला टाइट हो जाता, वो अगले हफ्ते तर्जुमे के साथ समझाऊंगा। तो क्या हुआ, ये तलाक जरूरत की खातिर रखे। असल में पिछले जमाने में क्या होता था, मुतल्लका जिसको तलाक दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मुतल्लका बोलते हैं। तलाक दी हुई औरत को फिर से निकाह कर लेने को पिछले जमाने में बुरा नहीं समझते थे। तलाक दे देने के बाद इद्दत गुजरते ही निकाह के पैगामात नंबर 1 आते थे। कैसे आते थे, एक औरत को तलाक दे दिए, इद्दत गुजर गई, पैगामात आते थे घर को बाकायदा, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब तलाक होने वाली औरत को इतना बुरा बना दिए गए हैं कि उसका निकाह, उसका शोहर मिलना मुश्किल है, दूसरा निकाह करने वाला मिलना मुश्किल है। और उम्र का लिहाज ही नहीं, औरत बड़ी होती थी उम्र से, या बराबर की होती थी या छोटी होती थी, कोई लिहाज नहीं होता था। निकाह कर लेने वाले भी मिलते थे, निकाह करने वाले भी मिलते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन आज तलाक को भी बुरा समझने लगे, मुतल्लका को भी बुरा समझने लगे। तलाक जो जरूरत की खातिर दी जाने वाली तलाक बुरी नहीं है। समझ में आ रही ना, बताया ना मैं, जब जरूरत पड़ गई, जब भी तलाक नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खुदकुशी की शक्ल में या फिर जान लेने की शक्ल में, मर्डर की शक्ल में निकल जाएगा। उम्र का कोई लिहाज ही नहीं था। अल्लाह के नबी खुद मिसाल है, 25 साल की उम्र अल्लाह के नबी की, 40 साल की उम्र हजरत खदीजा की, और उससे पहले 2-3 शोहर इंतकाल कर गए थे हजरत खदीजा के। कोई बुरा नहीं, 2 हो, 3 हो, 4 शोहर इंतकाल कर गए हो, फिर भी नौजवान लड़का निकाह करने के लिए तैयार होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस्लाम हमेशा औरत को इज्जत की जिंदगी देने की तरफ ही तवज्जो दिया है, बेइज्जती की जिंदगी देने की तरफ माइल नहीं किया है। अच्छा, उम्र का कोई लिहाज नहीं है। अल्लाह के नबी 6 साल की उम्र में निकाह कर लिए, 9 साल की उम्र में हजरत आयशा को रुखसती मिल गई, और इन्होंने इतने निकाह कर लिए। ये छोटी उम्र में निकाह करने की बात करते। तो मैं आप लोगों को एक मिसाल देकर समझाता हूं। आजकल जो फिल्म स्टार्स काम करते हैं, 50 साल के, 60 साल के, 25 साल 22 साल के हीरोइन के साथ काम करते नहीं करते? अरे करते नहीं करते, और करने को शान महसूस करते नहीं करते। अरे आपको मीडिया के सामने शान से बोलते, मुझे इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला, मैं इसका शुक्रिया कैसा अदा करना है कि मालूम नहीं, तो बोलते नहीं बोलते।
अरे भाई अल्लाह के नबी दोनों जहां के आका के साथ मिलना, इनको निकाह की ज़ौजियत का मौका मिलना, इनसे भी बढ़कर है, इनका तो कोई औकात ही नहीं है बोलने के लिए। और ये निकाह भी कैसा निकाह है इनका, इनकी जो चीजें हैं, जिना को दावत देने वाले, गुनाह को दावत देने वाले, बुरी चीजों को दावत देने वाले। परसों ही कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक फिल्म स्टार से पूछ रहे हैं कि आप इतने बड़ी उम्र के हो गए, इतनी छोटी छोटी उम्र वाली लड़कियों के साथ फिल्म करते हैं, क्या आपको कुछ शर्म महसूस नहीं होती क्या? तो बोलता है, वो लड़की का बाप भी वो इंटरव्यू में है, तो बोलता है कि देखो मैं जिसके साथ फिल्म किया हूं उसको भी कोई तकलीफ नहीं है, इसका बाप भी है, इसको भी कोई तकलीफ नहीं है, तुझे क्या तकलीफ हो रही? सवाल करने वाले को सबके सामने बोल रहा। तो अब ये लोग, हालांकि ना वो हमेशा के लिए उसकी बीवी है, ना वो हमेशा के लिए उसकी कोई बन सकती है, नहीं, लेकिन अब यहाँ पाक पवित्र और मुअज़्ज़ज़ रिश्ता बन रहा है, हमेशा के लिए वो बीवी बनकर रहना चाहती है, और वो भी अल्लाह के नबी के बनकर रहना चाहते, तो इनको क्या परेशानी? तो बहरहाल और भी बहुत सारी चीजें बयान करने की है, इंशाअल्लाह अगले पीर को इसको मुकम्मल किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो देखिए, तलाक के सिलसिले में हो, 3 तलाक के सिलसिले में हो, रजई हो, बाइन हो, मुगल्लज़ा हो, कोई भी हो, ये मसाइल बहुत नाजुक हैं। हम लोग कुरान को नहीं समझेंगे तो दूसरे लोग जब इश्काल करेंगे तो दिल में ख्याल आएगा कि हाँ ये हुक्म इस्लाम में गलत है, नाउज़ुबिल्लाह, ये तरीका इस्लाम में गलत है, नाउज़ुबिल्लाह, हमारी फहम हमारी सोच के मुआफिक गलत है, लेकिन इस्लाम और अल्लाह के मुआफिक गलत नहीं रहेगा। तब समझाने वाले सही समझाएंगे, सही समझेंगे, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान फहमी की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान के मुआफिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।